आफ्टर द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेट, यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना कम हुआ रिएक्टेंट का अपॉन टाइम, कितना टाइम गया, अभी we will be calculating rate of the reaction by rate law. तो ये रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ का एक सिंपल फंडा है कि अगर तुम्हारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वो ज्यादा कोलाइड करेंगे और ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे. So according to rate law, rate of the reaction is directly proportional to the concentration of reactant molecule. क्योंकि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे वो ज्यादा कोलाइड करेंगे मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा. तो रेट लॉ क्या है मैं लिख के बताता हूँ तुमको फटाफट. So our rate law says कि rate of the reaction is directly proportional to active mass, यानी concentration of reactants raised to a power which may or may not be equal to its stoichiometry. Abhi, what do you mean by this? Let us try and understand. Let's say you have some reaction A of A plus B of B giving you C of C and D of D. So your rate of the reaction is directly proportional to concentration of A and concentration of B. Raised to a power, they are raised to some power. Let's say this is raised to a power X and this is raised to some power Y. It is raised to some power. Now this X and Y are not A and B. ये randomly कोई भी number है, but they may be A or B or they may not be A or B. So this X and Y are experimentally determined. तो X and X plus Y, अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं ये नंबर को, जैसे ये 2 है और ये 1 है, A raised to 2 है and B raised to 1 है, तो 2 plus 1 becomes 3 and that is called as the order of the reaction. X is the order of the reaction with respect to A, Y is the order of reaction with respect to B, and X plus Y is the order of reaction overall. And this order of reaction is experimentally determined. तुम ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही देख सकते हो, तुम रिएक्शन को देख के गेस नहीं कर सकते. I'll give you an example. जैसे you have H2 plus H2 plus I2. You have H2 plus I2 giving you 2HI. इसका अगर मैं rate of the reaction लिखूं, तो इसका rate of the reaction is directly proportional to the concentration of H2 raised to 1 and concentration of I2 raised to 1. So इसका जो order है reaction का, that is 2. The order of the reaction for this one is 2. तो H2 raised to 1 है, I2 raised to 1 है. अब अगर मैं similarly एक दूसरा example दे दूं, जैसे H2 plus Br2 giving you 2HBr. So इसका no order है, इसका कोई प्रॉपर ऑर्डर है ही नहीं, ना 1 ना 2 ना 1.5 ना 2.5, ऐसे कोई रैंडम ऑर्डर, इसका कोई प्रॉपर ऑर्डर है ही नहीं. इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है. दिस इज नथिंग बट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2, concentration of Br2 raised to half upon 1 plus concentration of HBr plus upon concentration of Br2 raised to m. So this is quite complicated. You don't have to worry. You don't have to by heart this. ये इस टाइप का जो भी रिएक्शन आएगा हम उसे बोलते हैं कि they have no order. It is very very complicated. तो ये वाले एग्जांपल से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको कि ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ये जो ऊपर हम लोग लिख रहे हैं एक्स और वाई, इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड. कुछ रिएक्शंस तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है. यू कैन नॉट गेस इट. इसको गेस वर्क पे नहीं किया जा सकता.
तुम देख सकते हो दे आर वेरी सिमिलर रिएक्शन, H2 plus I2 गिविंग यू 2HI, H2 plus Br2 गिविंग यू 2HBr। और अगर मैं Cl2 डाल दूं, H2 plus Cl2 गिविंग यू 2HCl, तो वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो उसका भी अलग हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, तो ये बहुत ध्यान से याद रखना है। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, so this x and y can be a, can be b, or it can be something else also। अच्छा, मैं फाइनल लिख देता हूँ, मैं इसे हटा के कांस्टेंट डाल दूंगा, दिस इज स्मॉल k, नॉट कैपिटल K। कैपिटल K इज जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्मॉल k इज ओवर योर, क्योंकि ये रेट लॉ का है, तो स्मॉल k विल बी रेट कांस्टेंट। So this is your rate constant. What I'm trying to tell you is, if you have any reaction, अगर इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, always this is going to be x and y only। अगर मैंने तुमको एक रिएक्शन दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल NO plus H2 gives you N2 plus H2O। इसका रेट क्या लिखेंगे हम लोग, रेट विल बी इक्वल टू K concentration of NO raised to X and concentration of H2 raised to Y। You cannot guess, it is not 2 and 1, it is always X and Y। You always have to remember concentration जो रहेगा reactant का, that will be raised to X and Y, and that is rate law। So we will do a sum based on rate law, which the question is given on your screen। For a reaction A plus B giving you product, अगर B का concentration double किया मैंने, तो और A constant है, तो rate of the reaction double हो जाता है। और अगर मैंने A को triple किया और B को double किया, तो rate of the reaction increases by a factor 6। So what is the order of the reaction with respect to each reaction? तो मेरे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगे। सबसे पहला इक्वेशन तो यही बनेगा, ये है इक्वेशन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज R विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट concentration of A raised to X and concentration of B raised to Y। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या दिया है, if B is doubled at constant A, मतलब मैं A को कांस्टेंट ही रख रहा हूं और मैं B को डबल कर रहा हूं, तो B will become 2 times of B, that will be Y। तो मेरा रेट क्या हुआ, रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, तो रेट बिकम्स 2R। तो ये टाइम पे अगर R था, तो ये टाइम पे हो गया 2R। अब क्या दिया है, if A is tripled, if A triples and B is doubled, A को ट्रिपल किया है एंड B को डबल किया है, तो the rate of the reaction increases by a factor 6, so this becomes 6R। You need to calculate the order of the reaction, तो तुमको x और y निकालना है। Now that becomes very simple, you can just simply divide stuff। So if I will divide equation 2 by equation 1, why am I doing this, क्योंकि equation 2 and equation 1 मतलब a by a raised to x is common, तो वो कट जाएगा, the only thing you will be left with is y। So this becomes 2R upon R equal to k, and k तो कटने वाला है, फिर भी मैं लिख देता हूँ k a raised to x। इसको मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ 2b the whole raised to y, मतलब it will be 2 raised to y and concentration of b raised to y। नीचे इक्वेशन 1 का पैरामीटर है k a raised to x and b raised to y। तो r कटेगा, k कटेगा, a raised to x कटेगा, b raised to y कटेगा, तो you will be left with 2 raised to 1 equal to 2 raised to y। So therefore your y will be equal to 1।
your y will be equal to 1. तो y मिल गया हम लोगों को. अभी हम लोग x भी निकाल सकते हैं. अभी तुम लोग कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, either 2 or 3 और either 1 or 3. It's your call. But 1 और 2 नहीं कर सकते क्योंकि इसमें a raised to x कट जाएगा. We need x. So I'll take equation 3 by equation 1. So it will be 6r by r. It is k by k. It is 3a, मतलब 3 raised to x, and it is a raised to x. This is also a raised to x. This is 2b raised to y, मतलब 2 raised to y and b raised to y. अपॉन इधर भी आ जाएगा b raised to y. तो मैं ये तो कट जाएगा, r भी कट जाएगा, k भी कट जाएगा, a raised to x भी कट जाएगा. So you will be left with 6 is equal to 3 raised to x and 2 raised to y. But y तो 1 है. So this will become 6 is equal to 3 raised to x into 2. 2 इधर आ जाएगा, तो this becomes 3 is equal to 3 raised to x. So therefore your x is nothing but 1. Okay, this is 3 raised to 1. So your final answer will come out to be rate is equal to k, a raised to 1 and b raised to 1. So the order of the reaction is first order with respect to a, first order with respect to b, and second order with respect to overall reaction. Generally हमें सिर्फ overall reaction का पूछते हैं, but ठीक है. So this is how we do the sum. एक और चीज I would like to tell you, that is how to guess unit of k. ये सबसे important part है. एंट्रेंसेस में सबसे ज्यादा हमें यही हेल्प करता है. यूनिट ऑफ k कैसे निकालते हैं? r का यूनिट फिक्स्ड होता है. r का यूनिट इज फिक्स, मतलब अगर मैंने तुमको ऐसा एक जनरल ले लिया कि r इज इक्वल टू k a raised to n, where n is the order of the reaction. अभी मैं ओवरऑल ऑर्डर पकड़ के चल रहा हूँ कि अगर इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर 2 है. तो मैं जनरली ऐसे ही ले लिया r k a raised to n. तो therefore तुम्हारा k will be nothing but r upon a raised to n. अब r इज रेट का यूनिट होता है मोलार पर टाइम. टाइम कुछ भी हो सकता है, तो मोलार पर टाइम इनवर्स. एंड a का यूनिट होता है मोलार, एंड क्योंकि वो n टाइम्स है, तो अगर 2 रहेगा n सेकेंड ऑर्डर रहेगा, जैसे ये सेकेंड ऑर्डर है 1 + 1 2, तो वैसे ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा. 0 ऑर्डर है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे n आ जाएगा. सो देयरफॉर मेरा k का यूनिट विल बी इक्वल टू मोलार 1 - n टाइम इनवर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे. इससे तुम काफी कुछ गेस कर सकते हो के का यूनिट देख के. तो इट विल बी m कंसंट्रेशन 1 - n टाइम इनवर्स. तो अगर मैंने तुमको बोला है कि यू हैव अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देख के तो नहीं गेस कर सकते, लेकिन के का यूनिट देख के हम ऑर्डर गेस कर सकते हैं. अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन दिया है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब n विल बी 0. Don't worry, what is this n? This n is nothing but your x and y. This n is nothing but your x plus y. ये जो तुम कर रहे थे ना इधर ट्राइगोमेट्री लिख रहे थे, तो ये तुम्हारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है. तो if n is 0, तो रेट क्या आ जाएगा? मोलार पर टाइम इनवर्स, मतलब सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, जो भी दिया. मोलार को मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
ज्यादा करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, एंड दैट इज ओनली टाइम इनवर्स, क्योंकि मोलार 0 हो जाएगा. अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो NS2, so this is molar raised to -1 टाइम इनवर्स. तो इस तरीके से हम किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं. ठीक. So we have another question over here. The rate of the first order reaction, A giving you B. तो पहले मैंने रिएक्शन देख के तो सबसे पहले तो मैं रेट लिखूंगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है उधर, लेकिन सबसे पहले तो मैं रेट लिखूंगा. तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है इधर, B नहीं है रिएक्टेंट, तो इट विल बी RKA⁻x, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, एंड क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेंशन्ड है तो इट इज A⁻1. तो रेट दिया है 5.4 into 10⁻⁻6. When concentration of A is 0.3 molar, मतलब ये दिया है 3 into 10⁻⁻1. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. तो बस डिवाइड करना और क्या, 5.4 into 10⁻⁻6 upon 3 into 10⁻⁻1. So K will be equal to 3 1s into 10⁻, ये ऊपर जाएगा +1 होएगा तो -5. यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट हम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम इनवर्स आ जाएगा. फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो 1 - 1 0. तो टाइम इनवर्स यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया है, तो आई विल राइट इसका यूनिट एज सेकंड. So we are doing one more sum. 2H2 plus 2NO giving you 2H2O plus N2. The rate of the reaction is first order with respect to H2 and second order with respect to NO. देखो दोनों के आगे आगे दो दो लिखा हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता है. जो डेटा दिया है वही हम लोगों को उसी के हिसाब से आंसर आएगा. So the rate of the reaction is concentration of H2 raised to 1 दिया है फर्स्ट ऑर्डर, एंड concentration of NO raised to second दिया है, मतलब second order. So the rate constant is given as 0.42 over here. Calculate the rate when H2 and NO का concentration दिया है, मतलब तुमको रेट निकालना है. तुम्हारे पास R का वैल्यू है 0.42 इंटू H2 का concentration तुमको दे दिया है 0.015, मतलब I can write it as 1.5 into 10⁻², and NO is nothing but 2.5 into 10⁻², -2, or this is raised to 2, this is raised to 1, but this one is raised to 2. तो बस इसे सॉल्व करना है यहाँ पे, और कुछ और नहीं करना हम लोगों को. एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस you will get the answer as 3.94 into 10⁻⁻6 molar per second. Now what are we going to do is we will combine both the two methods together. हमारे जो रेट निकालने के दोनों मेथड थे, हम वो दोनों को कंबाइन कर देंगे. तो अभी the next topic that we are going to do is the heart of this topic, which says integrated rate law of first order reaction. तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा कि नहीं, ये तो हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलेगा. मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली जो फैक्ट जो तुमको याद रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, वो मैं तुमको लिखवा के दे दूंगा. लेकिन यहाँ पे पहले तो हम लोग ये करते हैं, सम बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन इंटीग्रेटेड रेट लॉ बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, दैट इज A गिविंग मी प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो B लिखने की जरूरत ही नहीं है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन कंपोनेंट A, तो दैट इज इनफ. तो A गिविंग यू प्रोडक्ट
तो अकॉर्डिंग टू द सबसे पहला वाला मेथड, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आज सबसे पहला वाला मेथड के हिसाब से हम कैसे रेट निकालेंगे, ए कितना डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस डी ए बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डी लिया है मतलब इंस्टेंटेनियस लिया है, तो ये तुम्हारा आज सुबह वाले पहले मेथड के थ्रू है कि जैसे अगर मैंने बोला ए एट टाइम 5 मिनट, ए एट टाइम 10 मिनट, तो 10 मिनट माइनस 5 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 10 माइनस 5, तो ये मेरे को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दे देगा। तो ये पहले मेथड से। अभी दूसरा रेट लॉ से, रेट लॉ के हिसाब से क्या आएगा, सेकेंड वाले मेथड के हिसाब से, रेट लॉ के हिसाब से रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज आर विल बी इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू 1, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन का रेट मेजर करने का तरीका है, ये भी रिएक्शन का रेट मेजर करने का तरीका है। हम बस इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, बस दैट इज इट। आई एम जस्ट इक्वेटिंग डी ऑफ ए अपॉन डी टी is equal to K concentration of A. Will bring similar variables together. तो मैं A को साथ में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 अपॉन A, तो concentration of A नीचे आ गया, into D of A is equal to K into D of T. Now what I'm supposed to do is I am supposed to integrate here, क्योंकि ये बहुत छोटे टर्म्स के लिए है, एक बहुत छोटे इंस्टेंटेनियस पॉइंट के लिए है विच इज डी है, लेकिन मेरे को एक बड़े से टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। वो बड़े से टाइम पीरियड मतलब क्या, तुम्हारा टाइम चेंज होगा इस टाइम पीरियड में फ्रॉम 0 से t, तुम्हारा टाइम पीरियड चेंज होएगा फ्रॉम 0 से t, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा फ्रॉम A0 से AT। तो जब तुम्हारा टाइम 0 है तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन A0 है, जब तुम्हारा टाइम t है तब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन AT है। तो ये लिमिट लगा के हमें इंटीग्रेट करना है। तो यू हैव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A0 से AT 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A dA is equal to integration of 0 to t dt। अभी भी नो सम इंटीग्रेशन का सबसे पहले दो बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहला वाला तो यही है कि इंटीग्रल ऑफ dx is nothing but x, तो इंटीग्रल ऑफ dt is going to be t, इंटीग्रल ऑफ dt is going to be t because इंटीग्रल ऑफ dx is x। तो ये आ जाएगा अपर लिमिट विच इज t एंड 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। दूसरा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx, जैसे ये है 1 अपॉन a dA, तो 1 अपॉन x dx, तो 1 अपॉन x dx इज log x। अब मैथ्स में तुम डायरेक्टली लॉग लिख देते हो, क्योंकि मैथ्स में log टू द बेस 10 या तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना होता है, तुम्हारे पास वहां पे नेचुरल लॉग ही होता है हर बार। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग है कि log टू द बेस 10 है, और हर बार कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला आएगा तो वो नेचुरल लॉग आता है। तो ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग मतलब ln, log टू द बेस e, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ln ऑफ a। बाहर माइनस साइन तो है ही, इसका वैल्यू आया ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यहां से रहेगा ये A0, यहां से रहेगा ये AT का कॉन्सेंट्रेशन एंड A0 का कॉन्सेंट्रेशन। तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है और हमारा आ जाएगा डेरिवेशन। तो दिस विल बी ln ऑफ अपर लिमिट मतलब AT, तो A के बदले AT आ जाएगा, ये ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट के बाहर ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये A0 आ जाएगा इक्वल टू दिस इज t माइनस 0, t के बदले t, t के बदले 0, t माइनस 0,
So finally what are we going to have is, अच्छा 1 second, I just missed something, that is I missed k, यहाँ पे k था, sorry, ये इंटीग्रेशन में k था ना, k was constant, तो it is taken out, so here you have k, so minus अंदर जाएगा तो this will become ln of a naught minus ln of at, and this is going to be k, t minus 0 is 0, k minus t minus 0 is t, I'm really sorry, so this becomes ln of a naught upon at is equal to kt. Therefore, you have k, that is rate constant, will be 1 upon t, ln of a naught upon at. And अगर मेरे को ln को natural log में convert करना है, तो I have to multiply by 2.303. So I multiply by 2.303 by t log of a naught by at. So now what are we going to do is calculate half-life So we need to calculate half-life for first order reaction. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि तुमको हाफ लाइफ निकालना है, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ अवर मेन इक्वेशन. मेन इक्वेशन हमारा जो डिराइव किया अभी अभी हमने वो ये वाला, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ दिस. मैं टी को इधर ले लेता हूँ और के को इधर ले लेता हूँ, बिग डी. तो ये मेरा आ गया टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log of a naught by 80. अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हम लोगों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को एग्जैक्टली हाफ करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे. मतलब तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए नॉट. अब ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टी हाफ. तो मेरे को अगर टी हाफ निकालना है तो जो मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ए टी, दैट शुड बिकम ए नॉट का बराबर आधा. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए नॉट, जो मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है. व्हाट इज दिस टी एंड व्हाट इज दिस ए टी? ए टी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी. तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी हाफ चाहिए, तो इट शुड बिकम इनिशियल का आधा. तो when t will become t half, then मेरा जो at है it should become initial का half, a naught by 2. तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो it will be t half is equal to 2.303 upon k, very nice, log of a0 आएगा and at क्या होएगा, a naught by 2. तो this is going to be a naught by 2, ये कटेगा एंड 2 पर आ जाएगा. तो यू आर गोइंग टू हैव 2.303 इनटू log 2 अपॉन के. हम ये भी सब्स्टिट्यूट करेंगे एट प्लेसेस, हालांकि हम एक फाइनल आंसर पे आएंगे. log 2 का वैल्यू और 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 0.692 बाय के. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के का यूनिट है सेकेंड इनवर्स, याद रखना. So we have a sum over here based on the first order reaction. So the half life दिया है, half life of a first order reaction is given as 0.5 minute. So half life is 0.5 minutes. तुम लोगों को कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट के, and you need to calculate the time required for 80% of the decomposition. अच्छा, इधर मेरे को कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिया नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला तो मेरा कुछ इस तरीके से बनता है, k is equal to 2.303 by t log of a naught by 80. तुम बोलोगे सर हाफ लाइफ दिया है तो ये क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हमें बोला ना 80%
डिकम्पोज करने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी तो निकालना है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करने वाले, लेकिन हमें ए नॉट और 80 तो दिया ही नहीं है, तो लेट ए नॉट बी 100, तो हम ए नॉट को 100 कंसिडर करेंगे, ये हमेशा अज्यूम करना है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% टू डिकम्पोज, मतलब 80% डिकम्पोज हो चुका है, तो 80 इज द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट। हमेशा याद रखना 80 इज द अमाउंट ऑफ concentration, amount of A left, so 80 will be nothing but 20 and not 80, क्योंकि 100 में से 80 गया तो बचा कितना, 20। ओके, तो पहले तो हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल देंगे, दैट इज प्रीटी सिंपल टू डू। अभी अभी हमने हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला देखा है, दैट इज टी हाफ इज 0.693 बाय के, सो टी हाफ is nothing but 0.693 by k, or I can simply write k is equal to 0.693 by t half, and t half is nothing but तुम्हारा 0.5 minutes। 0.5 को मैं हाफ लिख सकता हूँ, तो 0.693 by half मतलब it will be 1/2, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, सिर्फ दैट इज इट। तो 0.693 into 2, so it will be 6, 9 2 the 18, 1 carry 12, 13, 1.386, so it is 1.386 minute inverse। सेकेंड पॉइंट, मुझे टाइम निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ए नॉट 100 रहेगा तो 80 20, तो मैंने फॉर्मूला में डाल दिया 1 टी निकालना है, तो टी उधर लेके जाता हूँ, के इधर लेके आता हूँ, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.386 लॉग ये है 100 अपॉन ये है 20, क्योंकि 20 बचता है, तो दिस विल बी लॉग 5। टाइम है तो आंसर मिनट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया है, और इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, इसका फाइनल आंसर आएगा 1.162 मिनट। So the question is, the half-life of a pseudo first-order reaction is 6 hours. How long will it take for concentration of the reactant to decrease from 0.8 molar to 0.5 molar? तो मतलब बहुत क्लियरली ये मेरे को इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो मेरा ए नॉट दिया है 0.8 मोलार टू 0.25 मोलार, ये नहीं बोला है कि इतना कम हुआ है, ये बोला है कि इतने तक पहुंचेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टू डिक्रीज फ्रॉम 0.8 टू 0.25। तो दिस इज नॉट कि जितना डिग्रेड हुआ है, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट 80, इस पे ध्यान देना। अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, अभी यहाँ पे मेरे को के नहीं निकालने बोला है, तो मैं थोड़ा फॉर्मूला को प्री वर्जन में लिखूंगा। मतलब मुझे पता है मेरा टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट 0.693 बाय के, तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.693 बाय के, लेट मी जस्ट राइट हियर 2.303 log 2 बाय के। ये जब हमने डेरिवेशन किया था इसका, तो ये डेरिवेशन का प्री वर्जन था। यहाँ पे जब हम फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ निकाल रहे थे, तब हाफ लाइफ में हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो यू गॉट 2.303 इनटू log 2, उसको मल्टीप्लाई किया तो 0.693 आया। आई विल बी यूजिंग दिस वन एंड नॉट द लास्ट फॉर्मूला। 2.303 log 2 यूज करूंगा, के को उधर लेके चले जाता हूँ, तो के विल बिकम 2.303 log 2 अपॉन दिस इज टी हाफ, तो आवर में दिया है, याद रखना है। तो मैं वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूं तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log of a naught by 80। A lot of changes I'm going to do. So k is nothing but your this
The reason I have written 2.303 is ताकि वो cancel हो जाए 2.303. This is nothing but your log 2 and your t half is 6. R दिया है तो R लिख देते. This is 2.303. मेरे को t पूछा है. Log of a naught initial is 0.8. Final is 0.25, which I can write it as 1 into 4. 0.25 can be written as 1 into 4. So 2.303 is going to get cancelled. 0.8 into 4 is 3.2. तो ठीक है, वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा. You will be having log 2 upon 6 is equal to 1 upon t. This will be nothing but log 3.2. So t को उधर लेके गया मैं, so it is 6 into log 3.2 upon log 2. इसका वैल्यू डालो जो भी आएगा, इसका वैल्यू डालो जो भी आएगा. Finally you will get the value for t, and that you will get as 10.07 hours. भी तुम कर सकते हो, मैंने ये प्रेफर किया करना.